Hello everyone. Now we are going to start the next point, uh, like POS. We already learn it about this POS and max term, but the main point is that we are going to cover here to understand the problems. Okay, how you can find the max terms. Okay, so over that, this I am giving you the overview about the POS or max terms. Okay, so see in front of you some points are given in the slide. Uh, a way of representing Boolean expression as a product of some terms. Okay, so here you find some terms are in product. Okay, so that's why these some terms are taken in considerations. Okay, so here POS uses max terms. So generally we will say here it is a max terms. Max term is a sum of Boolean variable either in normal form or a complemented form. Now, generally, it is a product of max terms. Generally, it is a product of max term, and we will represent it as capital M or pi. Okay. As last lecture, I told you that most of the books are referring max term as M or denoting max term as M, and some books are denoting max term as pi. Okay, so it will be depends. Okay, now just keep it in mind. Okay, so POS is formed by considering all max terms whose output is low. Okay, while writing max terms for POS, uh, input with value 1 is considered as the complement, and the input with value 0 is considered with the variable itself. Okay, these are the main highlight key points regarding the max terms and the POS. Now, we will go for understanding of the problems. Okay, see, I am giving you a example. Okay, here example is like this. If you want to write, okay, you can also write, no problem. Okay, side by side in your book. Okay, you can solve it. Okay, so write the expressions for Boolean function. Okay, here Boolean function is given in f of abc, okay, is equal to summation of small m. Okay, now capital M is not given, so that's why as in POS I already told you that there may be a convention of writing like some, okay, summation of m small m, okay, or summation of pi or capital M. Okay, so here in summation of m in bracket 1 comma 4 comma 5 comma 6 and 7 in standard POS form. So we need to find a standard POS form of this. Okay, so here these are the terms given to you. Okay, but these terms are in min terms. Okay, so that's why here I already written it. The min terms are 1 4 5 6 7. So here you need to find the max terms. So that's why those terms which are not included in the min terms are called as max terms. So we write it as 0, 2, 3 are max terms. Okay. Now I'm writing in the function form. So that's why f of ABC is equal to pi m. Okay. So that's why pi m in bracket 0 comma 2 comma 3. Okay, it is written like this. Okay, now we find what is that 0 2 and 3. So that's why from the truth table we can find 0 is m0, 2 is m2, and 3 is m3. Okay, now from the truth table again you have to find, okay, that what is m0. M0 is a combination of the three variable like a plus b plus c. Okay, so here for 0 it is represented as high term. Okay, as I told you in the key points. Okay, so that's why a is 0, b is 0, and c is 0. Okay, so that's why here a b c are written. Now m2 is written like 0 1 0. So that's why 0 1 0 will be written as a plus b bar plus c. So here value of a is 0, b bar is 1, and c is 0. Remember,
Here the truth table you need to refer. As per the truth table, these values are taken in consideration. Similarly, for M3, it is in binary form. We will say it is 0 1 1. 0 1 1 will be written as A plus B bar plus C bar, right? So this is a way of describing the standard POS form. So you may ask in MCQ based questions that you need to write the standard POS form. So you should know how to write that standard POS form. ओके नाउ आई एम गिविंग यू द रिवर्सिबल थिंग्स. ओके, मैं आपको यहाँ पर आंसर से आपको बुलियन फंक्शन डिफाइन करने के लिए भी कहूँगा, या बुलियन फंक्शन से आंसर भी डिफाइन करने को कहूँगा स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म. चलो नाउ यू सी दिस एग्जांपल. ओके, अभी मैं आपको यहाँ पर अलग तरीके से और थोड़ा टेबुलर फॉर्म में एग्जांपल शो कर रहा हूँ. सी, write the logic expressions in canonical POS form from the given truth table. ओके, आपको एक ट्रुथ टेबल दिया है यहाँ पर, उसमें 4 कॉलम है A, B, C एंड Y. ओके, जैसा आपको लास्ट टाइम भी ट्रुथ टेबल दिए थे वैसे ही यहाँ पर भी ट्रुथ टेबल है. तो A, B, C की वैल्यू डिफाइन की है 0 0 0, और Y एज ए आउटपुट है, उसकी वैल्यू डिफाइन की है या नॉट डिफाइन भी है. ओके, तो यहाँ 1 आपको यहाँ पर नॉट आउटपुट है और 0 यानी आउटपुट है. यानी पीओएस फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पर क्या कंडीशन बोली, देखिए मैं आपको फिर से वो वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ. व्हाट इज पीओएस फॉर्म? POS is formed by considering all max term whose output is low. Okay, keep it in mind, this will be the sentence. Okay, just I am highlighting this sentence. What I said, POS is formed by considering all max terms whose output is low. तो यहाँ ट्रुथ टेबल में 1 के ऊपर आपको आउटपुट नहीं लेने के लिए कहा है, 0 के लिए आउटपुट लेने के लिए कहा है. तो 0 को यहाँ मैक्स टर्म कहा गया है. ओके, यानी y इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो वहां पर ये मैक्स टर्म है. यानी कीप इट इन माइंड, इस तरह के अगर ट्रुथ टेबल आपके सामने रहेंगे सो वो ट्रुथ टेबल को आपको इस तरह हैंडल करना रहेगा. सो दैट्स व्हाई 0 0 0 के लिए वैल्यू है 1, 0 0 1 के लिए है वैल्यू 0, 0 1 0 के लिए है 1, 0 1 1 के लिए है 1, 1 0 0 के लिए है 0, 1 0 1 के लिए है 1, 1 1 0 के लिए है 0, और 1 1 1 के लिए है 1. अभी मेरे पास से एक क्वेश्चन है आपके लिए, कैसा कि ये 1 क्या रेफर कर रहा है और 0 क्या यहाँ पर डिफाइन कर रहा है. ओके, 1 क्या इंडिकेट कर रहा है और 0 क्या इंडिकेट कर रहा है. तो आपने ऑलरेडी आपने यहाँ पर इस तरह के ट्रुथ टेबल और इस तरह का आपने आंसर ऑलरेडी पिछले वीडियो में शायद देखा है. तो देखिए कैसा है कि 1 का मीनिंग है मिन टर्म और 0 का मीनिंग है मैक्स टर्म. तो यहाँ पर हम पीओएस फॉर्म में जा रहे हैं, तो पीओएस फॉर्म फाइंडिंग के लिए यहाँ पर 0 इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज 0 इज इंडिकेटिंग अ मैक्स टर्म. सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर 0 का यहाँ पर इस तरह लिख रहा हूँ. देखो लिखने की स्टाइल क्या है, ए बी, यहाँ पर ए बी और सी बार, ए बी प्लस सी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार. सिमिलरली दूसरे 0 के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ ए बार प्लस बी सी प्लस सी. ओके, ए बार प्लस बी प्लस सी. और थर्ड एक्सप्रेशन आपके सामने आएगी, थर्ड टर्म आएगी ए बार प्लस बी बार प्लस सी. ओके, तो यानी ए की वैल्यू यहाँ पर अगर आप लिख रहे हो तो ए की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन की रहेगी 0. ओके, और ए बार की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन की रहेगी 1. ओके, तो यहाँ इस तरह का मीनिंग रहेगा, यहाँ पर रिवर्ट मीनिंग रहेगा. तो चलिए तीनों एक्सप्रेशन अपन यहाँ पर लिखते हैं. y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बार इंटू ब्रैकेट में ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट इन ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार प्लस सी. ओके, इस तरह हमने यहाँ पर आपको वैल्यू दी और उसके नाम यहाँ पर m कैपिटल M में लिखे हैं m1 प्लस m4 प्लस m6, m1 प्लस m4 प्लस m6. ओके, तो उसी तरह मुझे यहाँ पर 146 के द्वारा यहाँ पर मुझे आउटपुट भी डायरेक्ट मिल रहा है. सो दैट्स व्हाई पीओएस फॉर्म डायरेक्टली मिल रहा है मुझे. y इज इक्वल टू
pi in bracket 1 comma 4 comma 6. I hope this is in front of you. I hope everyone is getting this. Okay, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से. अगर कोई डाउट भी रहा, no problem. Okay, you can ask me very freely. Okay. So see, this will be the example. Again I am repeating the same thing. Okay, आपके लिए फिर से यहाँ पर repeat कर रहा हूँ दूसरे और एग्जाम्पल के द्वारा. तो सी एग्जाम्पल ऐसा है, फ्रॉम द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो express the function f in sum of minterm and product of maxterm. Okay, तो sum of minterm और sum product of maxterm यहाँ पर डिफाइन की है. Also obtain the simplified function f of a b c in the canonical sum of product form and product of sum form. ओके, आपको दो फॉर्म में यहाँ पर आपको लिखने के लिए कहा है. ओके, यानी आपको पीओएस और एसओपी दोनों फॉर्म में आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखने के लिए कहा है. ओके, तो आपको मैंने ऑलरेडी पिछले एग्जांपल में बताया, वन आउटपुट टर्म अगर होगी यानी एफ या वाई यहाँ पर वन अगर होगा तो वो मिन टर्म रहेगा, अगर जीरो रहा तो वो मैक्स टर्म रहेगा. ओके, तो चलिए यहाँ पर ट्रुथ टेबल भी देखते हैं. ए बी सी. ओके, 0 0 0 उसके लिए एफ की वैल्यू दी है 0. 0 0 1 उसके लिए वैल्यू दी है 1. 0 1 0 एफ इज इक्वल टू 1. 0 1 1 एफ इज इक्वल टू 0. 1 0 0 एफ इज इक्वल टू 0. 1 0 1 एफ इज इक्वल टू 1. 1 1 0 एफ इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट 1 1 1 एफ इज इक्वल टू 0. सो यहाँ आपको मैं अभी पहले मिन टर्म्स कैसे लेने हैं ये हम यहाँ पर ले रहे हैं. सॉरी, हाँ, मिन टर्म्स कैसे लेने हैं ये हम यहाँ पर पहले देखते हैं. ओके, सो दैट्स मिन टर्म्स के लिए इस ट्रुथ टेबल में आपको यहाँ पर वैल्यू कैसे ढूंढना है अभी मैंने बताया. तो यहाँ पर मिन टर्म के लिए आपको वैल्यू लेना है जहाँ 1 है एफ में, तो वह एफ की वैल्यू जहाँ जहाँ 1 है वो मिन टर्म आपके सामने रहेगा. सो दैट्स वाई लिख रहा हूँ यहाँ पर द वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन एफ अज्यूम द वैल्यू 1 आर मिन टर्म्स. ओके, तो अभी यहाँ पर हम वो मिन टर्म्स की वैल्यू लिखेंगे. तो मैं यहाँ पर फंक्शन लिख रहा हूँ. अगर आपने एफ ऑफ ए बी सी लिखा तो भी चलेगा, या एफ इज इक्वल टू भी लिखा तो भी चलेगा. इज इक्वल टू समेशन ऑफ m1 m2 m5 m6. ओके, मैंने ये m1 m2 m5 m6 कहाँ से लाए? सी, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. तो यहाँ पर पहला है m0, दूसरा है m1, तीसरा है m2, m3, m4, m5, m6 और m7. टोटल यहाँ पर ट्रुथ टेबल के हिसाब से सभी वैल्यूज आपके सामने है. तो यहाँ m1 और m2 यहाँ 1 है और m5 और m6 यहाँ 1 है. ओके, तो यहाँ m1 m2 और m5 m6 हमने लिए, तो वैल्यू यहाँ पर ले ली. ओके, तो इन ब्रैकेट समेशन ऑफ इन ब्रैकेट 1 2 5 6 लिख लिए. ओके, इज इक्वल टू आपको यहाँ डायरेक्ट लिखना है. 1 बोले तो कैसा लिखेंगे? तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर ट्रुथ टेबल में दिया है ए बार बी बार. देखिए मैंने यहाँ पर मिन टर्म्स के लिए लिखना है. तो मिन टर्म्स में जो ए की वैल्यू है वह 0 है और मैक्स टर्म में ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है. ओके, तो ध्यान में रखना. तो उसी हिसाब से अपने को यहाँ पर भी लिखना है. यहाँ लिखा है ए बार बी बार सी, यानी 1 इस तरह लिखा है ए बार बी बार सी. 2 यहाँ पर लिखा है ए बार बी सी बार. ओके, ए बार बी सी बार. देन 5 लिखे हैं, 5 यहाँ पर लिखे हैं ए बी बार सी. ओके, ए बी बार सी. और 6 लिखे हैं यहाँ पर ए बी सी. ओके, गेटिंग एवरीवन? तो इस तरह यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखी है मिन टर्म्स के लिए. अभी मैक्स टर्म्स के लिए देखते हैं. अभी मैक्स टर्म में आपको यहाँ पर ट्रुथ टेबल में जहाँ जहाँ 0 दिए हैं वह मैक्स टर्म है. तो मैंने यहाँ पर लिखा है, पहला है m0, देन बाद में है m3, देन 4 और 7. ओके, तो 0 3 4 7 मैंने यहाँ पर पाई इन ब्रैकेट लिखे. ओके, उसके बाद अभी 0 3 4 7 यहाँ पर आपको लिखने हैं, लेकिन लिखते समय आपको यहाँ पर कन्वेंशन फॉलो करने हैं. ओके, मैक्स टर्म्स के लिए आप यहाँ पर ए की वैल्यू 1 लेते हैं, ए की वैल्यू 0 लेते हैं और ए बार की वैल्यू 1 लेते हैं. ध्यान में रखना. तो ए की वैल्यू 0 है, तो यहाँ ए बी सी आपका रहेगा पहला टर्म ए प्लस बी प्लस सी. और दूसरा टर्म रहेगा यानी 3 के लिए m3 के लिए तो रहेगा
ए प्लस बी बार प्लस सी बार। हाँ, बी बार यानी यहाँ पर बी की वैल्यू है 1 इसलिए बी बार, सी की वैल्यू है 1 इसलिए सी बार। गेटिंग एवरीवन? सो दैट्स व्हाई ए प्लस बी बार प्लस सी बार। देन नेक्स्ट आता है 4। 4 के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है ए बार बी सी। ओके, ए बार प्लस बी प्लस सी। ओके, गेटिंग एवरीवन? नाउ लास्ट टर्म लिखेंगे हम यहाँ पर ए प्लस बी, सॉरी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। हाँ, यहाँ पर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इस तरह रहेगा। तो यहाँ इस तरह आपको टर्म रहेगा। ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट रहेगा? ओके, I think everyone is getting this problem. Okay, if you have any doubt, no problem, you can ask me very freely. Okay, so that's why here this is the third one problem. Again I am taking you the revert thing for you. Okay, देखिए मैंने यहाँ पर रिवर्ट थिंग आपको यहाँ पर देखे रखी है, कैसे है देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, प्रॉब्लम इस तरह है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू द स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। ओके, अभी यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आपको स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में लेकर जाना है। ओके, तो स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में लेकर जाने के लिए हम यहाँ पर देखिए पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट बी बार प्लस सी। ओके, तो इस तरह हम यहाँ पर लिखे। ओके, सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर से एक्सप्रेशन लिखा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट में बी बार प्लस सी। ओके, कोई डाउट? अभी देखिए मैं यहाँ पर मैंने आपको रूल्स बताए थे। ओके, रूल्स ऐसे थे कि यहाँ पर अपने को टर्म फाइंड आउट करना है। टर्म है ए प्लस बी। अभी इसमें आपको मैक्सिमम कितने वेरिएबल सामने दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर आप यहाँ पर एक्सप्रेशन अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपके सामने यहाँ पर पहले टर्म में है ए और बी और दूसरे टर्म में है बी और सी, यानी आपको मैक्सिमम यहाँ पर टोटल 3 वेरिएबल है। ओके, तो 3 वेरिएबल यहाँ पर अगर है तो पहले टर्म में देखिए कौन मिसिंग है, सेकंड टर्म में देखिए कौन मिसिंग है। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो पहले टर्म में ए और बी प्रेजेंट है तो सी मिसिंग है, और दूसरे टर्म में बी और सी प्रेजेंट है तो ए मिसिंग है। तो अभी यहाँ हम रूल अप्लाई करेंगे बुलियन अलजेब्रा का। तो बुलियन अलजेब्रा का रूल अप्लाई करेंगे तो देखिए ए प्लस बी है, प्लस करना है हमें। ओके, तो अगर प्लस करना है तो हमें प्लस 0 ही करना पड़ेगा ना। तो a प्लस बी प्लस अगर मुझे ऐड करना होगा कोई थिंग तो मैं यहाँ पर 0 करूंगा तो तभी वो मीनिंगलेस रहेगा ना। तो मैं यहाँ पर 0 का इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन मैंने फाइंड कर लिया। अगर मुझे c यहाँ पर पास करना है तो मैं c पास करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ c बार। अगर मैं c बार अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो c बार यहाँ पर लिखने के लिए मैं यहाँ पर 0 का इंसर्शन करूंगा। तो 0 अगर मैंने यहाँ पर लिखा या 0 की जगह c बार लिखा तो उसका मीनिंगलेस रहेगा। सो दैट्स व्हाई मैं इस तरह लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी बार। ओके, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ओके, किसको डाउट रहा तो पूछिए मुझे। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी बार, सी बार का मीनिंग है 0, यानी मैं a प्लस बी के साथ और 0 अगर लगा दूं तो उसका मीनिंग है ही नहीं, तो यानी मुझे अर्लियर एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल जाएगा। उसी तरह b प्लस सी है तो b प्लस सी में मुझे 0 अगर यहाँ पर चाहिए है, लेकिन उस 0 की जगह मुझे अगर ए बार मिल जाता है तो मैं उसका इक्विवेलेंट लिखूंगा ना। तो इसलिए मैं b बार प्लस सी प्लस ए बार लिखा है। ओके, गेटिंग एवरीवन? तो ये एक्सप्रेशन समझ में आ गई। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सेपरेट करने जा रहा हूँ। देखिए, आपके पास अगर सी बार है तो या ए बार है इस एक्सप्रेशन में तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो। तो मैंने थर्ड एक्सप्रेशन यहाँ पर जो आखिरी एक्सप्रेशन है वो इस तरह लिखी, यानी आपको a प्लस बी प्लस सी बार यहाँ पर है तो आप इसको यहाँ इस तरह लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, ओके, ब्रैकेट में, ओके, अनदर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बार। ओके, उसी तरह मैंने सेकंड एक्सप्रेशन भी लिखा है b बार प्लस सी प्लस ए बार। तो यहाँ b बार प्लस सी कॉमन रहेगा और ए बार यहाँ पर सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इस तरह वो सेपरेट फॉर्म में मुझे एक्सप्रेशन मिल गया। अच्छा, कोई डाउट रहेगा भाई किसी को? ओके, अभी यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ पर सेपरेट कर दिया तो अभी मैं इसको यहाँ पर और कुछ यहाँ आगे मेरे पास चांस नहीं है रिडक्शंस के लिए या एक्सपांशन के लिए, तो मैं यहाँ पर उसे फाइंड करता हूँ ट्रुथ टेबल के द्वारा इसकी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर
ए प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू ट्रुथ टेबल में अगर देखोगे तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0। गेटिंग एवरीवन, ये रहेगा मेरा 0, ओके, जो मुझे रिजल्ट में मिला है। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी बार है, तो यहाँ ट्रुथ टेबल में देखिए ए प्लस बी प्लस सी बार, तो यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार यहाँ रहेगा, तो वो रहेगा इक्विवेलेंट उसका 0 0 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी 1 रहेगा वो, तो वो 1 मैंने यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली थर्ड एक्सप्रेशन है मेरे पास यहाँ पर ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, यहाँ इस तरह को अगर यहाँ ढूंढोगे तो वो मिलेगा एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, ओके, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, ओके, तो वो रहेगा 0 प्लस 1 प्लस 0, ओके, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 यानी इट इज इक्वल टू 2। सिमिलरली ए बार प्लस बी बार प्लस सी यहाँ लेंगे तो यहाँ पर ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ओके, तो वो रहेगा 6, ओके, तो इसलिए यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 0 लिख रहा हूँ, और वह इक्विवेलेंट 6 यहाँ पर फाइनली आंसर में लिखा। तो आई होप दिस आंसर इज गेटिंग टू यू, okay, you understood this from you got understanding from this problem, okay, truth table is in front of you, so because of the truth table it will be very easy for me to find the output of the expressions, okay, so that's why ये expression का जो output है वो easily मैं यहाँ पर find out कर पाया क्योंकि मुझे truth table पता था। So that's why in case if you have any questions in the MCQ like this, okay, find a POS standard POS form, so that's why ओके, इस तरह आप उसे यहाँ फाइंड आउट कर सकोगे। ओके, आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ओके, एवरीथिंग, ओके, सो दैट्स व्हाई आई होप दिस वीडियो विल बी इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मैं और यहाँ पर और एक यहाँ एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ, ओके, यानी आपको और आइडिया आ जाएगा। ओके, एक दो और एग्जांपल बताता हूँ, यानी आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट the expression y is equal to a plus b, okay, into a plus c into b plus c bar into standard POS form। ओके, मैंने अभी यहाँ पर आपको रूल बताएं, क्या रूल बताएं, अभी यहाँ पर टर्म देखिए a प्लस बी है, ओके, दूसरी टर्म देखिए a प्लस सी है, थर्ड टर्म देखिए b प्लस सी है, तो यहाँ टोटल कुल मिलाकर आपने ऑब्जर्व अगर किया तो कुल मिलाकर 3 वेरिएबल आपके सामने यहाँ प्रेजेंट है। कौन कौन से वेरिएबल है? ए, बी और सी। तो ए, बी और सी है, लेकिन यहाँ अगर आप पहली टर्म ऑब्जर्व करोगे तो पहली टर्म में ए और बी ही प्रेजेंट है, सी एब्सेंट है। दूसरी टर्म में देखोगे तो ए और सी प्रेजेंट है, बी एब्सेंट है। और थर्ड टर्म में देखोगे तो ए एब्सेंट है, बी और सी प्रेजेंट है। ओके, तो मैंने वही फंडामेंटल यहाँ पर अडॉप्ट किया है कि जो यहाँ पर मिसिंग टर्म के लिए मैं यहाँ 0 का एडिशन कर रहा हूँ। तो a प्लस बी के साथ में यहाँ पर 0 ऐड कर देता हूँ, तो 0 की जगह जो मिसिंग टर्म है उसका 0 यहाँ पर लिखता हूँ। यानी अगर यहाँ मिसिंग c है तो मैं उसे सी बार यहाँ लिख रहा हूँ, तो सी बार लिखूंगा तो इट इज एज गुड एज 0। सिमिलरली सेकंड टर्म में लिखा है मैंने बी बार, ओके, तो यानी a प्लस सी है प्लस बी बार यहाँ पर एब्सेंट टर्म थी, वो है यहाँ पर लिख दिए। बाद में थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में बी और सी प्रेजेंट है, तो ए एब्सेंट था, तो इस वजह से मैंने ए और ए बार को यहाँ ऐड कर दिया। गेटिंग एवरीवन, आई होप दिस टर्म इज गेटिंग टू यू। अभी यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर अर्लियर एग्जांपल में उसको सेपरेट आउट कर दिया, सी और सी बार को, बाकी ए और बी को कांस्टेंट रख के सी और सी बार को यहाँ पर सेपरेट आउट कर दो। देखिए पहली टर्म देखिए मैंने कैसी लिखी है, पहली टर्म रीड करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बार। तो इस टर्म को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर इस तरह लिख रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, ओके, और दूसरा टर्म लिखा है ए प्लस बी प्लस सी बार, ओके, यानी आपको सी और सी बार में क्लेरिफिकेशन हो गया है। वैसे बी और बी बार में क्लेरिफिकेशन नीचे दिया है, वैसे ही ए और ए बार में क्लेरिफिकेशन नीचे दिया है। आई होप you got this last second term, okay, so here because of this you can able to separate out all these terms, okay। अभी लास्ट सेकंड टर्म जो है वो यहाँ पर आई थिंक टोटल कुल मिलाकर 6 टर्म्स है। अभी ये 6 टर्म्स में देख लीजिए कि यहाँ आपको कोई यहाँ सिमिलर टर्म तो नहीं दिख रहा है। अगर सिमिलर टर्म अगर दिख रहा होगा तो वो आपका रिप्लेस हो जाएगा, ओके।
अगर यहाँ सिमिलर टर्म नहीं है तो उसको इन सीक्वेंस फॉर्म में उसको अरेंज कर सकते हो। अगर नहीं करते हो तो डायरेक्टली यहाँ पर ट्रुथ टेबल के द्वारा आप पहले वैल्यू तो फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं ट्रुथ टेबल के द्वारा यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ इनकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर है 0 0 0। ओके, मैंने यहाँ पर शायद गलत लिखा है तो मैं उसको यहाँ करेक्ट कर रहा हूँ। ओके, हाँ, ओके, ये रहेगा 0 0 0। ओके, सिमिलरली सेकंड टर्म है a प्लस बी प्लस सी बार। ओके, a प्लस बी प्लस सी बार, ट्रुथ टेबल भी आपके सामने है। ओके, a प्लस बी प्लस सी बार। ओके, यानी यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बार यानी 1 रहेगा वो। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ ये रहेगा 0, मैंने रिवर्ट कर दिया 0 और ये 1। ओके, सिमिलरली थर्ड टर्म है आपके सामने a प्लस बी बार प्लस सी। ए प्लस बी बार प्लस सी यानी यह टर्म रहेगा 2 यानी 0 1 0। ओके, सिमिलरली फोर्थ टर्म रहेगा ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार। ओके, वह ढूंढी यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बार। ओके, वो रहेगा आपको यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बार यानी वो रहेगा 1। ओके, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 0 और ये 1 यानी ये रिपीट हो रहा है। हाँ, ये 1 टर्म यहाँ पर रिपीट हो रही है। ठीक है, उसको अपन स्किप करेंगे आगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन टर्म फोर्थ टर्म है ए प्लस बी प्लस और सी बार और फिर से थर्ड टाइम आ गया। ओके, सो दैट्स वाई ये भी यहाँ पर 0 + 0 + 1। ओके, वेरी ग्रेट। ओके, एंड लास्ट इज ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ओके, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ओके, यानी ये रहेगा 5। ओके, सो दैट्स वाई ए बार यानी 1। ओके, 0 और ये रहेगा 1। ओके, इस तरह यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू आप यहाँ पर अगर ढूंढोगे, यहाँ पर इस तरह अगर लोगे तो ये रहेगा आपका पहला 0। ओके, देन रहेगा 1। ओके, देन रहेगा 2। ओके, देन रहेगा 1। ओके, देन 1 एंड लास्टली आएगा यहाँ पर 5। ओके, तो इस तरह आपको यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके मिली है। ओके, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फाइनली आंसर में, वो रहेगी 0। ओके, 1। ओके, 2 और ये 5। ओके, तो इस तरह मुझे ये आंसर यहाँ पर मिल रहा है। देखिए अभी यहाँ पर आपको जो टर्म थी वहाँ टोटल कुल मिलाकर 3 वंस आए थे, तो 3 वंस आप यहाँ पर रिप्लेस कर लोगे। ओके, एज अ वन सिंगल वन से। हाँ, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स थी तो डोंट बॉदर अबाउट इट। ओके, उसको यहाँ पर इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट है तो वह आपकी रिप्लेस हो जाएगी जस्ट बाय यूजिंग द बुलियन अलजेब्रा लॉ। ओके, तो वह यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पर होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, सो दैट्स व्हाई कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। एक्सप्रेशन लिख लीजिए। एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी। ओके, देन सेकंड एक्सप्रेशन है b प्लस सी बार और थर्ड एक्सप्रेशन है ए बार प्लस सी बार। ओके, आंसर सारा आपके सामने है, डोंट बॉदर अबाउट इट। अगर आप यहाँ पर उसको सॉल्व करके देखना चाहते हो तो सॉल्व करिए, नो प्रॉब्लम। आई एम गिविंग यू सम टाइम। ओके, देखिए आई एम गिविंग यू नियर अबाउट 2 minutes। ओके, so within that 2 minute you can do it over your rough notebook। okay, just try to check it। देखो आ रहा है क्या नहीं?
मैं आंसर को तब तक करेक्ट कर लेता हूँ। देखो बोला, आंसर आपको सभी मिल रहे हैं कि नहीं? ओके, भले भी आपके पास यहाँ पर टर्म्स है, आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना था। थ्री टर्म्स थे, ए और बी पहली टर्म थी, तो आपको सी सी बार वहां पर ऐड करना था। दूसरे टर्म में आपको ए मिसिंग था, तो ए बार, और थर्ड टर्म में आपको बी बी बार देना था। ओके, जस्ट आप सेपरेट आउट करो, सेपरेट आउट करके आपको यहाँ पर मैंने वैल्यू दी है, देखिए मैच करिए, आपको शायद आंसर ये मिला होगा। ओके, I hope you get this how to find SOP and POS standard form. Okay, from the given Boolean expression. Okay, तो I hope this will be quite enough for your understanding. Okay, और बहुत सारे प्रॉब्लम है, बट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको दे नहीं रहा हूँ। Okay, but I think as per your level point of view, it will be enough for your understanding. Okay, so thank you very much for good listening, as well as give your attendance in the comment box. Okay, so stick view.